Good morning, students. Okay, today we will study about the factors affecting the rate of reaction. Out of these, some we have discussed earlier. Now, the nature of the reactants. This we have done. Nature of the reactant. Now, we are having this example. Now, this seems to be same. यहाँ पे आपको लग रहा है कि NO plus O2 give rise to 2NO2, 2CO plus O2 give rise to 2CO2. This seems to be same, but the rate of reaction is different in these two reactions. The first one is fast and the second one is slow. Now this rate of reaction now depends upon the different amounts of energies are required for breaking of different bonds. क्योंकि जब भी नया प्रोडक्ट बनेगा तो पहले जो प्रीवियस बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसमें क्या है, कंपैरिजन हो जाएगा इन दोनों में. जिस केस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, दैट रिएक्शन विल बी स्लो एंड द अदर विल बी फास्ट. ऐसे हम कह रहे हैं कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तब आपने देखना है अगर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है वो ज़्यादा है in the formation of different bonds, then that will be the fast reaction. So you can compare the rate of reactions with respect to the bond energies. So the first factor is nature of the reactants, कि उनके आपस में जो bond है, bond energy क्या है. Clear? The second factor, concentration of reactants. This we have done in terms of rate law, कि जो rate of reaction है that depends upon the concentration of reactants. Rate law हमने कर लिया है. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. Clear? The third one is temperature. This we will do in detail. Now थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. The rate of reaction increases with increasing temperature. The rate of reaction becomes almost double with every 10 degree rise in temperature. जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले से डबल हो जाएगा. क्लियर? द फोर्थ फैक्टर इज that is presence of catalyst. Now catalyst, we know it will speed up the reaction. So the fifth one is surface area of the reactants. The rate of reaction is directly proportional to the surface area. More the surface area, more will be the rate of reaction. आपने देखा होगा अगर हम जो वुड है उसके पीसीस को बर्न करते हैं और इसको कंपेयर करो, व्हेन यू विल बर्न द लॉग ऑफ वुड, एक आपने बड़ा जो पूरा लॉग होता है पीस लिया है वुड का और दूसरी तरफ आपने छोटे छोटे पीसेस को बर्न कर रहे हो, किस केस में बर्निंग जो फास्ट होगी, दैट विल बी इन केस ऑफ स्मॉल पीसेस, क्योंकि जब आप स्मॉल पीसेस करोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया. क्लियर? ऐसे आप कह सकते हो कि अगर हम पाउडर्ड सब्सटेंस ले रहे हैं, हमारा जो कैटालिस्ट, सपोज करो कैटालिस्ट जो पाउडर्ड है ना, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया. दूसरी तरफ हम सॉलिड ले रहे हैं, जैसे चारकोल की बात कर लो, सॉलिड चारकोल ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, पाउडर्ड चारकोल. तो पाउडर्ड के केस में क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. And the last one, sixth, is presence of light. Now some reactions do not take place in the dark. They take place only in the presence of sunlight. So these are known as photochemical reactions. For example, H2 plus Cl2 gaseous, that will form the 2HCl gaseous. So these are the factors that affect the rate of reaction. Now we will study the effect of temperature on rate of reaction in detail. Effect of temperature on rate of reaction. तो मैंने
एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो with every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate of reaction get double. Now before studying the effect, I will tell you some terms that are important to understand the effect of temperature. So now activation energy, what is threshold energy? So we will study these. Now firstly, what is threshold energy? The minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective is called threshold energy. Clear? अब रेक्टेंट के पास जो मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए जब वो कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, अब कोई भी रिएक्शन हो रही है रेक्टेंट्स के बीच में, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? अगर उनमें जो कोलिजन्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं। अब कोलिजन्स इफ़ेक्टिव कब होंगी? अगर उनके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, only then that will lead to the effective collisions and that will lead to the product formation. Now look at this graph. Now this is the energy of the reactants. ये reactants की अपनी एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेक्टेंट्स हैं H2 प्लस I2. दीज आर द रेक्टेंट्स. अब ये रेक्टेंट्स की एनर्जी है. अब इतनी एनर्जी से ये क्या है, प्रोडक्ट नहीं बना सकता. क्लियर? तो इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी और चाहिए, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. इतनी एनर्जी जो है ये इसकी अपनी है, पहले रेक्टेंट्स की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी जो आउटसाइड से इसको सप्लाई हुई है. चाहे वो हम कह रहे हैं कि सनलाइट से आ रही है एनर्जी, हमने उसको हीट किया है, वट एवर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये जो एनर्जी हमने उसको सप्लाई की है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. To activate the reactants to form the product. अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास ये reactants हैं H2 plus I2 give rise to 2HI gaseous. अब होता क्या है यहाँ पे, जो हमारे reactants हैं उनमें पहले अपने bonds हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे. ठीक है, तो अब जो प्रीवियस बॉन्ड्स हैं दैट विल ब्रेक अप एंड द न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म. अब ये जो है दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, और यू कैन से दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, और दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ से हमने जो शो किया है वो डॉटेड लाइन से शो किया है, विद द डॉटेड लाइंस. ठीक है, तो नए जो पुराने बॉन्ड हैं वो अभी कंप्लीटली टूटे नहीं हैं, नए बॉन्ड कंप्लीटली बने नहीं हैं. सो दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड आफ्टर दैट दीज बॉन्ड्स विल बी ब्रेक अप एंड दीज विल बी फॉर्म, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट. तो ये हमारी जो इंटरमीडिएट स्टेट है दैट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड हियर. वो कब बनेगा, जब हम उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ओनली देन दैट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. अब जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हमारा जो ग्राफ है देखो अप हो रहा है. अब पहले बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब नए बॉन्ड बनेंगे. जब नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, सो एनर्जी विल रिलीज. तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है लो हो रहा है. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट हमारा क्या है, HI. क्लियर? रेक्टेंट्स का जो पहले बॉन्ड्स हैं ब्रेक हुए हैं, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड. दैट एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ओके, then the energy is released to form product. Now what is the activation energy? How you can define it? This is the
मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हमने एक्स्ट्रा सप्लाई किया है, ये उसकी अपनी एनर्जी है रेक्टेंट्स की इतनी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये एनर्जी उसको हमने सप्लाई की है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड है टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और द मिनिमम, you can see the definition, the minimum extra amount of energy required to form activated complex, or the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. Clear? क्योंकि रेक्टेंट्स के पास अपनी इतनी एनर्जी नहीं थी, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए उसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई की. इट मींस थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, रेक्टेंट्स की अपनी एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो किसी भी रेक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो दैट इट कैन फॉर्म द प्रोडक्ट. So this is about the threshold energy and the activation energy. ये आपको definitions भी आ सकती हैं direct question में. Now to understand the effect of temperature, we can draw this graph. This is the fraction of molecules versus kinetic energy. Kinetic energy, now as the temperature we are saying that increases, the kinetic energy will increase. Okay. Now this graph is at a particular temperature, you can say. Now here this graph, यहाँ पे आपको peak मिल रही है. This show that this fraction of molecules, this is having the most probable kinetic energy, means maximum molecules की kinetic energy कितनी है, this much. Clear? तो ये जो molecules हैं, अब इनकी जो kinetic energy है, this is equal to the activation energy. क्योंकि हमारी जो एनर्जी है जब हायर होगी, एक्टिवेशन जब उसकी जो एनर्जी है रेक्टेंट्स की, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन ओनली दैट कैन शो इफेक्टिव कोलिजन्स टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली दीज मॉलिक्यूल्स हैविंग energy that is equal to or greater than activation energy, and only these molecules show formation of products. अब इसी में देखो आप, इसी ग्राफ को अगर हम दोबारा ड्रॉ करें, इसमें आपको मैं शो करती हूँ. सेम ग्राफ है. दिस ग्राफ इज एट एनी टेम्परेचर, T लिख लो यहाँ पे, T डिग्री सेल्सियस. ओके. अब व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, नाउ व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, यू कैन सी हियर दिस ग्राफ विल शिफ्ट. अब ये जो एरिया है, आपने यहाँ इसको ऑलमोस्ट डबल शो करना है. अब this shaded area becomes almost double. Kinetic energy fraction of, जैसे मैंने ऊपर ग्राफ बनाया है वैसा ही आपने ड्रॉ करना है. देखिए, fraction of molecules. Now this shaded area shows the fraction of molecules undergo effective collisions. अब इफेक्टिव कोलिजन्स कौन शो करेगा, जिसके पास एनर्जी है इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. ओनली दैट मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट. क्लियर? तो ये जब हमने टेम्परेचर को राइज किया T+10 डिग्री, T+10 डिग्री, तो ये शेडेड एरिया है वो डबल हो गया. इट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है, डबल हो गई. सो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स
double. So with the help of this graph, you can show the effect of temperature on the rate of reaction. With every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate of reaction get almost double. Clear? तो आपका जो rate of reaction है वो क्या है? डबल हो जाएगा.